I welcome today's speaker, very dynamic speaker, uh, Payam Bohraji. So welcome you, Payam, and I just go through your just given the information related to your regarding your achievement. So I am surprised, and my good wishes, lot of good wishes to you. You can grow in your life, and what types of the things you are thinking in the technology, in the pharmacy profession, you can achieve each and everything. My good wishes to all of you. And being a director, I welcome you from core of my heart, and I welcome to the all these participants, those who are the connect this lecture. And I also welcome coordinator of the IQAC, HODs, all HODs, and coordinator of this program, Dr. Pragraj ji. I also welcome all the participants, those also connect with our YouTube channel. And I know that this types of the you have the very big achievement. Okay, so now the voice is okay, clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Everything Okay, sir. is okay. Thank you very much. okay. So I hope Shall that I start? this lecture will be very, very useful and applicable to each and every students. मैं स्टूडेंट से एक दो या तीन चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारा एक फ्लायर रिलीज हुआ है, उस फ्लायर के गेस्ट स्पीकर के बाद प्राइम बोहरा लिखा है, उसके बाद कुछ लिखा है, उसको कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें. एक बार पढ़ने से कुछ पता नहीं लगेगा, कम से कम 3 बार पढ़ें, क्योंकि मैंने 4 बार पढ़ा हुआ है. क्योंकि व्हाट इज द लेवल, आप संतुष्ट किस चीज के लिए होना चाहते हैं. समटाइम इफ यू कैन अचीव वन गोल एंड यू फील दैट कि वी हैव अचीव द सो मेनी थिंग्स, ये इन्होंने प्रूव किया है कि एक टैलेंट और क्वालिटी इफ यू कैन फाइंड आउट एनीवेयर, बस फर्क 1 से 5 स्टेप्स का हो सकता है, बट एवरीवेयर ही डिड द एक्सीलेंट जॉब रोल, इंक्लूडिंग नाइपर, जीपैड, NIPR, IIT, and CUET PG, GATE, ISD, MTech, Manipal, everywhere he have the achieved the all India ranking. So this is the big achievement. So each and everybody listen carefully, because what purified knowledge he want to give to you, this is only by given Mr. Bohraji, because I know that this thing is not to achieve a one day or one types of the talk, but you can follow up how the need the dedication, devotion, regularity, and sincerity, so that we can achieve this types of the goal. So without taking time, I am thankful to you for accepting our invitation. And whenever you want to visit the ISF College of Pharmacy, I will provide the whole facilities and assist to you, and come over here and interact with our students. So it is better you can plan your visit in the month of the last week of the July. It will be the useful to the students. And Mr. Boraji, I hope that you can also contribute for the society. And number of time students, they are the unable to understand where they will go, how to do they can be prepared, because number of the agencies, number of the agent, number of the professionals, they are available in the market, and most of time they confused, because I know that people have the limited resources, and sometimes they can be invested then unable to the shift over anywhere. So I hope that whenever you are come over here, you're welcome, because आप जैसे यंगस्टर जब बात कहेंगे, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये महसूस होगा कि यस इट इज पॉसिबल. यहाँ का ही एक विद्यार्थी आपके नाइपर मोहाली में है, जिसकी सेकंड रैंक ऑफ दी जीपैट में पिछले साल आई हुई थी, संजीवन गुप्ता. तो ये एक मैसेज होता है बहुत बड़ा कि एक प्लेटफॉर्म आपको हर सुविधा दे रहा है, एंड यू नीड टू यूटिलाइज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सिर्फ आवश्यकता इतनी है एक डायरेक्शन की. सो थैंक यू वेरी मच खड़गराज जी फॉर इनवाइटिंग मी टू इंटरेक्ट सच टाइप्स ऑफ द यंग एंड डायनामिक लीडर. एंड मैंने पहले ही कहा है कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़े, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, एंड पॉलिटिक्स और दीन दुनिया से दूर होकर के जो प्रोफेशन के लिए आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो 100% करें, और आप दीर्घायु हो, और जिस जगह हाथ डालें मैं तो कहता हूं टॉप पर ही रहें. ऐसी मेरी ढेर सारी दिल से आपको
शुभकामनाएं. Thank you very much. So thank प्रणाम you, sir, सर। for your. Yes, sir. Hello. So thank you, sir. A very good afternoon to our respected Professor Dr. G.D. Gupta, sir, Director cum Principal, ISF College of Pharmacy, Moga. Today's guest speaker, Mr. Payam Bohra ji, IQAC Coordinator, Dr. Siddharth Mayan, all HODs, faculty members, and dear students. I am Dr. Khadgaraj, the coordinator of this event, and it's my great pleasure to welcome you all to today's guest lecture entitled From Aspirant to Achiever, Your Ultimate GPAD Preparations Guide. So today we have very energetic and young research scholar, Mr. Payam Bohra. He is a postgraduate student in pharmacology and toxicology at Naipar Mohali. He was a gold medalist in B Pharmacy from Mumbai University and ranked top in many exams like GPAT. In GPAT, he got AIR 43, IIT BHU AIR 7, AIMS AIR 1. He has written more than 25 research and review articles in various reputed journals. Apart from that, he is also contribute to the various scientific book chapters and book. He has won the number of awards in the national and state level competitions such as quiz, debates, and poster presentations. So he has also mentored the many various students in the research project, especially in the national exhibitions like CIIA and Makers Mela. So without taking much time, now I welcome today's speaker, Mr. Payam Bohra, sir, to start your lecture regarding GPAT. Sure. It's up to you, sir. Thank you so much for such a warm introduction, Dr. Khadka. And GD Gupta, sir, it's always like a welcoming back. I have been in ISF Con at Moga recently, and it was a pleasure visiting the. I also got a chance to look up to the pharmacology labs of the ISF, and they were amazing. I saw the labs, they were really very, very good to see everybody. All the faculties out there, Saurabh sir, Siddharth sir, Amandeep sir, everybody. It's a pleasure coming back to ISF and delivering a session. So it's like a homecoming for me back. And thank you for your kind words, sir. So firstly, जितने भी लोग, let me tell you, इस वेबिनार में अगले 1-2 घंटे में मेरे साथ हैं. मैं एक रिक्वेस्ट सबसे करूंगा कि जो भी मैं बता रहा हूं, प्लीज एटलीस्ट हैव अ लुक एट इट. बहुत काम आएगा आगे, क्योंकि वी एज यू नो फार्मासिस्ट, एज बी फार्म ग्रेजुएट्स, एज बी फार्म फार्म डी, हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें लगता है कि बहुत कम है. बट लेट मी टेल यू, यू हैव वास्ट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. So as mentioned by Dr. Khadga, I have completed my master's in pharmacology and toxicology from Naipur Mohali, and I'm currently working as an assistant manager at Academically Global, a tech startup. And these are few of my ranks. You can check them out later on. Firstly, तो as pharmacist हमें ये नहीं पता. मेरी screen visible है sir? Is my screen visible? Okay. यस सर। Yes, Okay, thank you. So firstly, as pharmacist, एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ये पता हो कि कौन सी एग्जाम्स के लिए हम एलिजिबल है. और काफी बार हमें पता होता है, बट वी डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर. कैसे इन एग्जाम्स का प्रिपेयर करें. हमें ये नहीं पता कि कौन सी एग्जाम की डेट कब आती है. पता चला फॉर्म डेट आके निकल गई, बट हम फॉर्म नहीं फिल कर पाए, लेट हो गए. ये 2 मेजर रीजन होते हैं. टैलेंट तो बहुत है. I've been to ISF, I've seen that there are a lot of, जब वो रिव्यू रिसर्च वगैरह सब मैंने देखे प्रेजेंटेशंस, डेफिनेटली there is talent amongst the students. All they need is a direction. एक रास्ता चाहिए कि भाई ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है. What is supposed to be read, how is it supposed to be read, and from where it is supposed to be read. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. It is very very important. So for what all examinations you can give as a B Pharm graduate, या while you're in the final year, BITS Pilani, you can go to BITS Hyderabad. BITS की एक खुद की higher degree examination होती है, right? ICT in Mumbai, one of the very core branches for pharmaceutics where you can pursue your pharmaceutics career. Naipar, of course, as GD Gupta sir previously mentioned, Sanjeevan Gupta, all India rank 2 from ISF College, is now pursuing. He's my junior. He was my junior at Naipar. So I've seen that a lot of talented students come out from, and he always tells me regard about everybody in ISF. वो हमेशा मुझे बोलता है, खड़गा सर के साथ रहता था वो,
एंड सौरभ सर, उसने काफी लोगों के बारे में मुझे तारीफ ही बताई है। जीडी गुप्ता सर, शेर ऑफ फार्मेसी, बहुत सारी चीजें वो आईएसएफ के बारे में मुझे बताता रहता है। सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी कि आईएसएफ के बारे में आई वाज ऑलरेडी नोइंग फ्रॉम हिम। जीपैट, ऑफ कोर्स, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये बहुत कम लोगों को पता होती है अबाउट सीयूईटी पीजी। सो ये मैं बता दूं कि सीयूईटी पीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन यूनिवर्सिटी, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, आपको यहाँ एडमिशन लेना है, सो इन यूनिवर्सिटीज में बहुत जरूरी है कि आप ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस दें। इनके बारे में डिटेल्स में डेफिनेटली आगे बताते चलूंगा आप लोग को, वो आप टेंशन ना ले। गेट, एब्सोल्युटली, गेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि आपकी जो इनको बायोटेक वगैरह में आगे परस्यू करना है करियर, माइक्रो या लाइफ साइंसेज में, सो फॉर लाइफ साइंसेज डेफिनेटली दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मणिपाल की आजकल प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हो रही है, एंड मणिपाल में जो रिसर्च वर्क है वो भी काफी ज्यादा हाई हो चुका है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। आईआईटी बीएचयू डेफिनेटली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे कॉमन यूनिवर्सिटी है, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी आप ब्रह्मेश्वर सर है, विनोद तिवारी सर है, लॉट ऑफ गुड पर्सनालिटीज जहां पे आप मास्टर्स जिनके लैब में परस्यू कर सकते हो। गैट बी, स्पेसिफिकली बायोटेक, जिनको बायोटेक में इंटरेस्ट है उनको गैट बी जरूर देनी चाहिए, राइट? सर, in this session we have all final year students or third year as well? Everybody or mix? The crowd is mixed. Third year and Third fourth year. year students are Okay, there. third year and final year फोर्थ ईयर students. Okay. So third year पे तो जो है आपके पास टाइम बहुत है। फाइनल ईयर वाले अगर अभी पढ़ रहे हैं तो आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना कम नहीं कि आप प्रिपेयर ना कर पाओ। सो आगे मैं कैटेगराइज करके आप लोग को बताते चलूंगा दैट व्हाट यू कैन कैटेगराइज। एमबीए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एमबीए, फार्मास्यूटिकल एमबीए, एमबीए दो टाइप के होते हैं। हेल्थ केयर एमबीए, जिसके थ्रू आप हॉस्पिटल्स वगैरह में आगे देख सकते हो मैनेजमेंट में। एक होता है फार्मा एमबीए, जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए होता है। एंड एक होता है जो नॉर्मल एमबीए, फाइनेंस वाला। सो इट्स बेटर इफ यू गो इनटू हेल्थ केयर एमबीए और फार्मा एमबीए। जीआरई टॉफिल, जिनको बाहर परस्यू करना है अपना करियर, दोज हु वांट टू परस्यू अ करियर इन अब्रॉड, जीआरई टॉफिल आइल्स, ये सबसे प्रथम एग्जाम्स है जो आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है, क्योंकि दीज आर इंग्लिश लेवल एग्जाम्स। एम्स, अब जिनको ये है कि सर वी आर टायर्ड ऑफ परस्यूइंग बैचलर्स, अब सर हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आरआरबी, रेलवे फार्मेसी, सिपॉय अगर आपको मिलिट्री में जाना है, इसरो अगर आपको साइंटिस्ट फार्मासिस्ट की ओर जाना है, एम्स अगर आपको एम्स हॉस्पिटल में, दिल्ली एम्स, ऋषिकेश, लॉट ऑफ गुड एम्स आउट देयर इन नॉर्थ साइड डेफिनेटली। या तो आपकी स्टेट एग्जाम्स की एग्जाम्स भी निकलती रहती है, पंजाब की पीयू सीईटी वगैरह है ना, बहुत सारी सीईटी एग्जाम्स भी निकलती है जो आप स्टेट लेवल पे फार्मासिस्ट की दे सकते हो। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड वन टाइम रिवीजन बुक्स, तो ये कुछ मेरी स्क्रीन चेंज हो रही है क्या? अभी Yes, हुई sir. क्या? Yes, sir. Okay, I'll just Yes, sir. reshare my screen. I think so it is not getting changed. Yes. अगर आप स्टैंडर्ड वन टाइम रेफरेंस बुक की बात करें तो सर आप कोई ऐसी एक बुक बता दो जिसको हम पढ़ के हमारा जीपैट निकलेगा। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव इन माइंड, रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप ये सोचते हो कि एक बुक आपको जादुई मंत्र पढ़ा देगी और क्रैक करा देगी, देन दैट्स अ मिस्टेक। इट्स एन अमालगमेशन ऑफ मल्टीपल रेफरेंस बुक। जैसे सुटिक्स है तो आपको मार्टिन और लैकमैन पढ़नी ही है, फिजिकल फार्मेसी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लैकमैन एंड मार्टिन पढ़ना। एंड लेट मी टेल यू, वर्ड टू वर्ड एज इट इज, लाइन वाइज इससे क्वेश्चन जीपैट में आता है। आप देख सकते हो उठा के, क्वेश्चंस लाइन वाइज इसी से पूछे जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये रेफरेंस बुक को पढ़े। अगर आप कोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली लिपिनकोट, गुलमेन, केडी त्रिपाठी। अगर आप जुरिस्प्रूडेंस की बात करें, कूचेकर। ओके, मैंने एक लिस्ट बनाई है, आगे मैं आपको दे दूंगा वो, एंड दिस पीपीटी आल्सो आई विल बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर सो दे कैन रेफर दिस। तो एक एक बुक है एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तुम बोलोगे सर इतना टाइम नहीं है कि हम ये बुक्स पढ़े, या सर ये कितनी मोटी बुक्स है, इफ देयर आर लेस इमेजेस, सच रॉन्ग टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट, बहुत पुरानी बुक्स है सर, कैसे पढ़े? ऑप्शन नहीं है, पढ़नी पड़ेगी। मूवीज देखते हो ना, 3-3 4-4 घंटा बैठ के यू ऑल कैन वॉच मूवीज, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हो ना, राइट? उसमें तो बोर नहीं होता, वो भी लंबी होती है। ये तो आपका करियर बनाएगी, इसमें तो डेफिनेटली आपको बोर नहीं होना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक योर करियर।
So please make sure that you refer to these books. ओके अब अगर तुम मुझे बात करो कि सर हमें एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें हम थोड़ा सा रिवाइज करें या हमें ग्लिम्स चाहिए, सो नगमा इनामदार, उमंग शाह पियर्सन गाइड, ये दो ऐसी प्राइम बुक्स है जो आपको पढ़नी है। सर अब इन्हें कैसे पढ़े? आपने तो सिर्फ ये बता दिया दैट सर वी हैव टू स्टडी। हाउ डू वी हैव टू स्टडी? सो फर्स्टली यू हैव टू लुक अप टू द थियोरी पार्ट। whatever theory part is mentioned in this books उसे पढ़ लेना है अच्छे से, चाहे वो सिटिक्स हो, कोलोजी हो, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो, कॉग्नेसी हो, केमिस्ट्री हो, एनालिसिस हो। एंड लेट मी टेल यू, एनालिसिस जो है लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, बट एनालिसिस इज समथिंग दैट इज वेरी इजी। सीधा वुडवर्ड फिशर रूल, सीधा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस पे क्वेश्चन आता है। चलो अब मेरा सेशन जो है वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। सो सबसे पहला क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया है, तो मैं चाहता हूं मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो थोड़ा सा मेरा साथ दे। तो मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, देखते हैं किसको वो क्वेश्चन आता है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है तो मैं उसको प्राइमरीली कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई करूंगा? इफ आई हैव अ डबल बॉन्ड इन अ स्ट्रक्चर तो कॉन्जुकेशन, ठीक है, तो मैं उसे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी से सबसे पहले एनालाइज कर सकता हूं? यूवी से, आईआर से, एनएमआर से या मास से? हु कैन टेल मी? चैट UV बॉक्स में। spectroscopy. वेरी गुड, हुएवर आंसर्ड दैट। एंड भारत भूषण कुमार, क्या बात है? UV. यस, वेरी गुड, ताली हो जाए जिसने भी आंसर दिया। एंड भरत भूषण कुमार, यूवी से आप कॉन्जुकेशन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए बहुत बढ़िया, सौरभ सर ने क्लैपिंग, हैंड क्लैपिंग दे दी, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस ऑफ क्रैकिंग जीपैट, सो क्यों क्रैक करे जीपैट? सबसे पहले तो एक नेशनल लेवल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने का टैग लगेगा, बहुत बड़ा टैग होता है। 50,000 स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, 50,000 स्टूडेंट्स गिव जीपैट, बट सिर्फ 5,000 क्वालिफाई होता है, यानी 10%। तो आप उन 10% में आ जाओगे, सबसे पहली बात। स्टाइपेंड, ऑफ कोर्स, 12,500 का स्टाइपेंड किसे अच्छा नहीं लगता डियर। यस, आपकी मास्टर्स, मेरा मास्टर्स जो नाइपर में हुआ है वो ऑलमोस्ट फ्री में हुआ है। हमें कुछ ऊपर जितनी फीस हमारी आती थी वो पूरी स्टाइपेंड से फिक्स होती थी, सो ऊपर से हमें फीस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज अनदर एडवांटेज। क्वालिफाइड फॉर द नाइपर दरवाजा, इफ यू वांट टू एंटर नाइपर और एनी अदर इंस्टीट्यूट, वहां पे भी जीपैट क्वालिफिकेशन लगते हैं। एंड लिमिनियन टाइम्स, जब आपको आगे लॉन्ग टर्म कोर्स की बात करें, पीएचडी करना हो तो भी जीपैट क्वालिफिकेशन लगता है माय डियर। यू नीड टू बी जीपैट क्वालिफाइड। जीपैट का मैं ओवरव्यू बता दूं तो सर हम कितने मार्क्स लाए और कितने मार्क्स सेफ होंगे? सो डेफिनेटली जीपैट, एवरीबडी नोज, इट्स अ 500 मार्क्स एग्जाम जिसमें 125 क्वेश्चन होते हैं, -1 मार्किंग एंड +4 फॉर द राइट आंसर, +4 फॉर द राइट आंसर। तो मिनिमम हमें 200 मार्क लाने हैं एंड 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एब्सोल्युटली एनीथिंग बिलो दिस विल लैंड यू अप इन ट्रबल। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इतना तो करे ही, इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके ही आए। ओके, अब सर जीपैट की तैयारी करनी है, कैसे स्टार्ट करें? सर एक रोड मैप बता दो। सो लेट मी टेल यू, शुरुआत आपकी सेमेस्टर से होगी। डेफिनेटली एट आईएसएफ आई हैव सीन द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू गेट, इट्स अमेजिंग। मैंने देखा है, वी हैव लॉट ऑफ गुड फैकल्टीज इन एवरी फील्ड, कोलॉजी हो, चाहे वो सिटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एवरीबडी इज गुड। तो जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, प्लीज डोंट मिस आउट द क्लासेस, वही आपका जीपैट में भी आएगा। सेमेस्टर जो पोर्शन है, दैट सेम थिंग इज गोइंग टू बी अ जीपैट सिलेबस, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग है। तो प्लीज मस्ती कब कर सकते हो? जब एक टीचर जा रहे, दूसरे टीचर आ रहे, वो जो टाइम मिलता है, राइट, व्हेन जब एक क्लास खत्म होती है दूसरी शुरू होती है, तब करो। क्लास के बीच में मस्ती अवॉइड करो डियर, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। वो मस्ती 1 साल की आप सैक्रिफाइस करोगे, आप अपना फ्यूचर बना दोगे, ठीक है? तो एटलीस्ट एंड मेक श्योर, एक कॉमन कंप्लेन होती है, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी गौर से सुनिएगा। एवरीबडी टेल्स सर हमें चीजें याद नहीं रहती, हम पढ़ते हैं बट वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स। तो डियर इसका एक ही मतलब है कि आप 3 मेमोरी का उपयोग साथ में कर नहीं रहे, यू आर नॉट यूजिंग 3 मेमोरीज टुगेदर। सर अब ये 3 मेमोरीज कौन सी है? ऑडियो, सुनना, आप सुन नहीं रहे हो कभी भी, जो आपको फैकल्टीज बता रहे हैं, जो कोई भी बता रहे हैं, जैसे अभी इस वक्त आई होप सब मेरा सुन रहे होगे, किसी को नींद नहीं आ रही होगी दोपहर को लंच करके, आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी। विजुअल, जो आप देख रहे हो, है ना, काफी बार कुछ चीज देखी हुई बहुत दिमाग में रह जाती है। मसल, आप साथ में लिख नहीं रहे हो, देखना, सुनना, लिखना,
जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है डियर, मजाल है कि आप कोई टॉपिक भूल जाओ, एंड जस्ट वन टाइम रिवीजन प्रॉपर वाला फोकस के साथ कोई चीज आप भूल ही नहीं सकते। आपके हिपोकैम्पस न्यूरॉन्स इतने स्ट्रांग है ना, आपकी कॉग्निटिव पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी डियर, अगर आप ये चीज करते हैं तो। सो प्लीज मेक श्योर जब भी आप पढ़ रहे हैं, एक एनवायरनमेंट पहले तो बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं बाजू में शोर शराबा है या ऐसा कुछ। सर अब आईएसएफ में तो हम हॉस्टल में रहते हैं सर, शोर शराबा होगा। लाइब्रेरी तो है आपकी, मैंने देखी है लाइब्रेरी, खुद भी जाके देखी है मैंने, बहुत काफी इनफ है स्पेस कि यू कैन स्टडी देयर, वहां जाके पढ़ो। एंड डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एम्प्टी पीरियड्स भी मिलती ही रहेंगे, ऐसे नहीं कि बैक टू बैक लेक्चर्स होंगे। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग पीरियड्स एम्प्टी, वहां पे देखो, राइट। अब सर मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, तो फार्माकोलॉजी ये आपको 25 क्वेश्चन देता है एग्जाम में, यानी 100 मार्क। 100 मार्क आपकी जेब में होंगे अगर आप फार्माकोलॉजी को क्लासिफिकेशन वगैरह मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, इफ यू डू दैट। फार्मास्यूटिक्स अगेन सर 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 200 मार्क्स तो सर यही हो गए। कॉग्निसी 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। केमिस्ट्री सारे मिला के एनालिसिस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 30 क्वेश्चन आते हैं सर, करीबन हो गए आपके 120 मार्क। तो ये मिला के ही आपके 360 मार्क तो हो गए, टॉपर तो आप यही बन जाओगे। बाकी के माइनर को अगर आपने छुआ भी नहीं ना, तो भी इतने सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग है आराम से टॉपर बन जाओगे। यू नो एक रैंकर और एक एवरेज और एक क्वालिफायर में क्या डिफरेंस होता है सर, हमें बस जीपैट क्वालिफाई करना है, अगर ये सोच रखोगे ना तो बस 70-80 क्वेश्चन तक रह जाओगे एंड माइनर सब्जेक्ट्स को टच नहीं करोगे। बट अगर तुम्हें रैंक क्वालिफायर से रैंकर में तब्दील होना है, सो डियर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम मिनिमम 90 to 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आओगे। और ऐसा माइंडसेट रखोगे कि सर मुझे 300 के ऊपर मार्क्स चाहिए। ये ही फर्क होता है रैंकर और क्वालिफायर में। ओके, दिस इज व्हाट दैट मेक्स अ डिफरेंस। चलो, तो अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं जो कि फार्मास्यूटिक्स से है अब इस बार। कैन यू टेल मी अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया डिसोल्यूशन अपैरेटस टाइप 2 कौन सा होता है? इंडियन फार्माकोपिया डिसोल्यूशन अपैरेटस टाइप 2 कौन सा होता है? कौन बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में एनीबडी कैन आंसर और यू कैन इवन अनम्यूट एंड आंसर, मेरी जगह नजर दोनों जगह है। बहुत बढ़िया भारत भूषण कुमार। बास्केट इज अ टाइप 2 apparatus इन इंडियन फार्माकोपिया एंड यूएस फार्माकोपिया में टाइप 1 है। बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज आपको 5-6 कराऊंगा ये जीपैट के ही रहे हैं, ये कोई ऐसे मैंने यहां वहां से रैंडमली नहीं उठाए। दिस हैज बीन प्रीवियस ईयर जीपैट क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। जिन जिन्होंने आंसर किया उनके लिए ढेर सारी तालियां। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप सब सुन रहे हैं, या सब ऐसे अटेंडेंस के डर से तो नहीं बैठे कि सर, आई एम टेलिंग यू ये आपका फ्यूचर बदल देगी अगर आप मेरे को 1 घंटा दीजिए, बस 1 hour इज ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अब सर जीपैट तो पढ़ लिया हमने, लेकिन हमने पीवाईक्यूज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नहीं पढ़े। अगर आप एफएक्यू एंड पीवाईक्यू नहीं पढ़ते हो तो पता कैसे चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आता है? Many people say that sir we don't think questions repeat। सही है, questions repeat नहीं होते, but concepts repeat होते हैं डियर। अगर इस बार क्वेश्चन कैप्सूल की साइज पे आया है तो अगली बार कैप्सूल के ब्लूम स्ट्रेंथ पे आएगा, लेकिन क्वेश्चन कैप्सूल से ही आएगा माय डियर। द क्वेश्चन हैज टू अपीयर फ्रॉम कैप्सूल्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर स्टडी प्लान कि सर अगर हमें पता है कि टैबलेट कैप्सूल्स पैरेंटल से क्वेश्चन आना है तो क्यों छोड़ के जाएंगे, है ना? जब पता है कि इससे आना, डेफिनेटली जब आपके आई गेस 2 यूनिट टेस्ट भी होते हैं आपके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन और एक सेमेस्टर एग्जाम होती है आपके सिलेबस में इन बी फार्म, तो आपके पास 2 यूनिट टेस्ट एक सेमेस्टर है कि आप पोर्शन कवर कर सके डियर। तो क्यों छोड़नी है ये अपॉर्चुनिटी? छोड़नी नहीं है डियर ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और 3 क्वालिटीज जो हर किसी में होनी चाहिए, परसीवियरेंस, एक कुछ कर दिखाने का जज्बा। अगर आपका एम ही नहीं है ना तो फिर आप लाइफ में बहुत गलत जा रहे हो, यू आर गोइंग वेरी रॉन्ग इफ यू डोंट हैव एन एम। एक परसीवियरेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में, डेडिकेशन। सर जैसे कि अगर सपोज मैं बात करूं डॉक्टर खड़गा की, मैं बात करता हूँ, ठीक है, सिंस आई हैव बीन विद हिम फॉर 2-3 days आउट देयर, एक डेडिकेशन देखता हूँ कि रोज सुबह उठ के वो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ रोज, एवरी डे ही हैज टू रीच ऑन टाइम इन कॉलेज, ही हैज टू पंच थंब लगाना पड़ता है, सीन हिम। सो एक डेडिकेशन है ना कि रोज टाइम पे जाना है, रोज पढ़ाना है बच्चों को, रोज कुछ नया रिसर्च का पढ़ना है। सो आप में क्यों वो डेडिकेशन नहीं आ सकता डियर? एक डेडिकेशन होना चाहिए कि सर हमें क्रैक करना है,
बाकी से भीड़ में चलोगे तो कुछ नहीं होगा, हटके दिखाना है तो यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। कंसिस्टेंसी, सर आज आईएसएफ में एनुअल इवेंट है, सर आज आईएसएफ में जिम का कुछ चल रहा है, सर आज ये चल रहा है, वो चल रहा है, इवेंट्स और ये सब तो चलता रहता है डियर। मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, कंपेंसेट करना जरूरी है डियर, कंपेंसेट करना बहुत जरूरी है। अगर आज एनुअल इवेंट था तो मैं कल एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा डियर, ठीक है, लेकिन मैं वो जो आज मेरा छूटा है मैं कल वो कवर कर लूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा काफी इंपॉर्टेंट है, जरा यहाँ पे एवरीबडी आई एक्सपेक्ट एन डीप अटेंशन। 21 रूल, सर ये 21 रूल क्या है? तो 21 डेज रूल ये कहता है कि अगर आप कोई भी चीज 21 दिन तक करते हैं वो आपकी आदत बन जाती। ये मैं नहीं कहता, ये डिप्लोमा इन साइकोलॉजी का जो मैंने कोर्स किया है वो कहता है। साइकोलॉजी की बहुत बुक्स ने कहा है कि अगर आप 21 दिन तक कोई चीज करते हो वो आपकी आदत, वो आपकी हैबिट बन जाता है। लेट मी टेल यू। सो अगर आप सुबह, आप बोलते हो सर हमसे सुबह उठा नहीं जाता, 1-2 दिन 5 बजे उठो, 6th या 7th डे पे अपने आप तुम 5-6 बजे उठोगे बिना किसी अलार्म के। मैं आज भी 7:30 को उठता हूँ डियर, 7 बजे उठता हूँ बिना अलार्म के, 7 7:30 को मेरा फिक्स टाइम है, आई डोंट नीड एन अलार्म। 21 दिन तक मेरी हैबिट थी कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, मतलब उठूंगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप ये 21 दिन का रूल फॉलो करें। ट्रस्ट मी, कोई भी चीज आपकी आदत बन जाती है ना। पबजी खेलना शुरू किया, क्या बोलते हैं उसको, बैटल ग्राउंड है ना, पबजी खेलना शुरू किया, एक बार आदत लग गई तो छूटती नहीं है ना। वैसे ही पढ़ाई की आदत भी लगाओ डियर, वैसे ही पढ़ाई की आदत लगाओ। द नेक्स्ट पॉइंट, मॉक टेस्ट। डियर मॉक टेस्ट तो देना बहुत जरूरी है। इफ यू मिस आउट ऑन मॉक टेस्ट यू आर मिसिंग आउट टू लॉट ऑफ थिंग्स। ये टेस्ट से आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हो कि सर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, विच सब्जेक्ट इज अ लिटिल वीक, वेयर वी नीड टू वर्क अपॉन अ लिटिल मोर इन डीपर साइड। तो वो काफी ज्यादा जरूरी है कि आपको वो टॉपिक्स पता हो। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी कीन आई ऑन मॉक टेस्ट्स। अब सर पेपर आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे पेपर? 3 राउंड में सॉल्व करना है। मैं तो कहूंगा 2 ही राउंड्स बेटर है। फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हो कि सर ये आंसर इसका है, मतलब इसी का है। अब हमारे इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन का वक्त आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें मैंने मास्टर्स किया है, फार्माकोलॉजी से है। ओके, सो चलिए देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाते हैं। फैनकोनाई सिंड्रोम एंड डिसकलरेशन ऑफ टीथ, ये कौन से एंटीबायोटिक का एडवर्स इफेक्ट है? फैनकोनाई सिंड्रोम एंड डिसकलरेशन ऑफ टीथ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आशीष, वेरी गुड भरत, बहुत बढ़िया। आशीष एंड भरत ने बिल्कुल सही आंसर दिया। टेट्रासाइक्लिन जो है ये एक फैनकोनाई सिंड्रोम, और बहुत बढ़िया। देखा, यही क्वेश्चंस आए थे जीपैट में, ये मैंने अपने नहीं बनाए हैं। चलो लेट्स मूव अहेड। सेकेंड राउंड में आप वो क्वेश्चन में जाओगे, सर हमें 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, वेदर वी हैव टू अटेम्प्ट ए बी। 2 ऑप्शन में वो होता है ना, हमेशा 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन तो रहता ही है, चाहे वो सेमेस्टर हो चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। तो ये वो राउंड है, बट इसमें रिस्क लेना जरूरी है, ठीक है। सो एंड मिनिमम कभी भी ये सोच के मत जाओ, नेवर थिंक फ्रॉम योर होम कि सर मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये कभी भी सोच के मत जाना डियर कि मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऑलवेज ये सोच के जाओ कि मिनिमम इतने तो मैं करके ही आऊंगा, मिनिमम इतने तो मैं करके आऊंगा। और मिनिमम आपको कितने सॉल्व करने हैं? इफ यू वांट टू क्वालिफाई, अगर आपको चांसेस अच्छे रखने हैं तो 60 to 65 क्वेश्चंस। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 चाहिए तो 100 क्वेश्चंस के ऊपर ही। अगर आपको अंडर 100 चाहिए तो 90 to 100 क्वेश्चंस। अंडर 500 चाहिए तो 85 to 90 क्वेश्चंस। ये ऐसी बफर रेंज है, बिल्कुल, वेरी गुड। वो कैसे बताया था, उसका मैकेनिज्म भी बता दिया। 10th and 11th कार्बन पे जो कैल्शियम है वो शिलेट करता है, बिल्कुल, बिकॉज इसीलिए हम कभी भी टेट्रासाइक्लिन को, अगर आप हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की बात करते हैं, डेफिनेटली सौरभ सर ने पढ़ाया होगा सबको कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो कभी भी कैल्शियम कंटेनिंग सप्लीमेंट्स के साथ नहीं देते, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स। एंड अब तो खड्गा सर इज आल्सो आई थिंक सो एचओडी, सो डेफिनेटली ये तो आप पढ़ाई होगे कि टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं देते, टेट्रासाइक्लिन को आप किसी भी कैल्शियम सल्फेट कोई भी सप्लीमेंट हो उसके साथ नहीं देते। क्यों? डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क वगैरह, क्योंकि सर वो शिलेट कर देगा और बायोअवेलेबिलिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन को कम कर देगा। एब्सोल्युटली करेक्ट।
अब ये जो लिस्ट है इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसी पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। ये टॉपिक्स है जैसे सुटिक्स, तो इसी को मैंने ब्रेक डाउन किया कि हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने मार्क्स आपकी जेब में है। कैलकुलेशन में आइसोटोनिसिटी पे किसी साल आ जाता है, समटाइम्स देयर इज क्वेश्चन ऑन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेशन, समटाइम्स देयर इज क्वेश्चन ऑन एलिगेशन मेथड। तो कैलकुलेशंस पे पोसोलॉजी जो है डोज कैलकुलेशन, उस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला वगैरह। टैबलेट कैप्सूल से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, या तो एक्सीपिएंट्स पे पूछेंगे या तो आपको टैबलेट्स किसी पे भी पूछेंगे, बट पूछेंगे जरूर। एरोजोल्स, कॉस्मेटिक्स में सनस्क्रीन, वैनिशिंग क्रीम, ओके, एसपीएफ फैक्टर वगैरह, इस पे ही क्वेश्चन आते हैं। कोल्ड क्रीम्स। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आप सेमेस्टर 3 में पढ़ते हो फार्म इंजीनियरिंग, तो बहुत भूल जाते हैं अक्सर के सर अलग अलग यूनिट ऑपरेशन होते हैं। कभी भी आपको इंडस्ट्री में जाएंगे ना, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, करेक्ट, फिल्ट्रेशन, हीट ट्रांसफर, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, बहुत सारे यूनिट ऑपरेशन होते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन को सक्सेसफुल बनाने में। तो उन यूनिट ऑपरेशंस के जो प्रिंसिपल इक्विपमेंट्स हैं और उनके प्रिंसिपल, वो सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे पॉइंट्स पे जो है क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको मालूम होने चाहिए। ओके, अब सर मैंने बता दिया टैबलेट कैप्सूल्स ये, पर इसको पढ़ना कैसे है सर? इसको आपने पढ़ना है, मेरी स्क्रीन सबको दिख पा रही है? अभी मैंने चेंज करी, आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी। सो अब आपको उसको Yes, it इस is तरीके से visible. पढ़ना है। ओके, थैंक यू। आपने उसको इस तरीके से पढ़ना है, टैबलेट कैप्सूल पैरेंट्रल एरोजोल, ऐसे 4 कॉलम बना दो, एक ही पेज में समराइज करना है। इफ यू वांट कि आपके नोट्स जितने शॉर्ट एंड सिंपल रहे उतने बेस्ट है। एक पेज में समराइज कर दो, जितना हो सके कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करो कि यू गेट अ रोड मैप, कि ये एक बार नजर फैला दी तो हो गया। जैसे व्हेन आई गॉट, मैं जब आईएसएफ आया था तब मैंने डेफिनेटली संजीवन की जो रूम थी, खड़गा सर और उनकी रूम देखी थी। सो मैंने देखा उस पे उसने भी वही किया था जो था कि एक पेज पे ही सारा का सारा ये कर दिया, नोट डाउन कर दिया। तो एब्सोल्युटली यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि कैसे एक ही पेज पे पूरा आपने समराइज कर देना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो इस तरीके से आप इवैल्यूएशन, टेस्ट्स, मेथड्स, एग्जांपल्स, इक्विपमेंट्स, एक ही पेज पे सब आ गया। हार्डनेस, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, कैप्सूल्स में ब्लूम स्ट्रेंथ, आयन कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, करेक्ट। कितना मॉइस्चर कंटेंट अलाउड होता है कैप्सूल्स में? मेरा चौथा क्वेश्चन, कितना कंटेंट, कितना परसेंट कंटेंट मॉइस्चर का अलाउड होता है इन द, हु कैन टेल मी? कौन बताएगा मुझे? यस, मुझे सबके नाम लेने पड़ेंगे तब जाके मुझे लग रहा है सब उठेंगे, नहीं तो सब सो रहे हैं। मैं सबके नाम अब लेता हूं, चलो। यस, गायेंद्र, मुस्कान, बबनप्रीत, रिया, आशीष, नालिन, अंशिका, विक्की, हिमांशु, बिपाशा, आयुषी, भरत, मनोरंजन, नितिश, चरणजीत, पवनी, आसमा, कल्पना, आविदय, नितेश, सीमा, डॉल्वी, कौशिक राज, नितिका, पीयूषा, करिश्मा, अब्दुल, अबू शर्मा, ज्योतिष, अंबिका, हम लोग हैं, सत्यम, कुशवा, नितिन, मेघना, एवरीबडी इज देयर, अनुज, ताबिश, मरिंद्र, वंदना, स्नेहा, अक्षित, मेघा, बलराम, हाँ जी सब है ना, कोई सो तो नहीं गया? शुभम, आई होप एवरीबडी इज देयर विथ मी। चलिए, वेरी गुड, 6 to 9% एंड 12 to 16% इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, बहुत बढ़िया। तो ये सेम चीज है जो भी आप सेमेस्टर में पढ़ते हो, दैट सेम थिंग इज गोइंग टू बी रिप्रोड्यूस्ड इन द जीपैट एग्जामिनेशन, नथिंग न्यू, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप वो अच्छे से पढ़ें। मूविंग बैक, केमिस्ट्री से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली केमिस्ट्री से स्टीरियो केमिस्ट्री पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। नेम रिएक्शंस फिक्स है कि 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम नेम रिएक्शंस आने ही आने हैं, वेदर इट इज फ्रॉम सम वर्ड्स, वुल्फ किश्नर, क्लेमेंसन, कहीं से भी आ सकते हैं, बट देयर हैज टू बी क्वेश्चन ऑन नेम रिएक्शंस। ओके, क्लियर टिल हियर? अच्छा, नेम रिएक्शन से मुझे याद आया मेरा 5वां क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री। कैन समबडी टेल मी ऐसा कौन सा नेम रिएक्शन है जिसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का यूज होता है? Which of the following is a name reaction in which you use an organometallic compounds? टिश्चिनको, ओके, बिसाइड्स दैट टिश्चिनको के अलावा क्या हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, एक्सेलेंट, क्या हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा है? RMGX,
RMgX पढ़ा है ना, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक, मैग्नीशियम मेटल है ना, सोडियम मेटल है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, फार्माकोलॉजी, एब्सोल्युटली फार्माकोलॉजी से तो आपने क्लासिफिकेशन, यू कैन नॉट लीव क्लासिफिकेशन। बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन को छोड़ रहे हो, बहुत ही बड़ी गलती करोगे अगर आप फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन को छोड़ रहे हो। एंड एडवर्स ड्रग इफेक्ट, सर याद नहीं होते फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन, ऐसे कैसे नहीं होते? अच्छा, मुझे वो शाहरुख खान का डायलॉग कोई याद दिला सकता है, एनीबडी? किसी को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी डैश तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। वो डायलॉग ओम शांति ओम का क्या है? किसी को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी डैश तुम्हें मिलाने में लग जाती है। काइनाट, वेरी गुड। तो काइनेट रिसेप्टर पे ऐसा कौन सा ड्रग है जो काम करता है, ये कौन बताएगा मुझे? सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने बस ओम शांति ओम मूवी देखी थी और हमें ये पता है काइनात है। डियर, काइनेट पे टोपिरामेट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो काम करता है, ठीक है? तो आपने क्लासिफिकेशन एक बार देख के लिखना है, एक बार बिना देखे लिखना है और एक बार पढ़ना है। 3 बार तुमने अगर कर लिया ना, कोई ऐसा एक बंदा मुझे इस 70 स्टूडेंट्स में से बता दे कि सर हमें चीजें याद नहीं रह रही है, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रिमेंबर। बस आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है? बस लिखना है, पढ़ना है, देख के लिखना है। कोलॉजी के क्लासिफिकेशन जबाब पे हो गए। रात को मैं 2 बजे भी उठा के अगर किसी के हॉस्टल के रूम पे जाके उसे उठा दूं और बोलूं कि चलो बताओ मुझे एंटी गाउट का क्लासिफिकेशन, तो तुरंत ड्रग आने चाहिए दिमाग पे, एलोपिरिनॉल, फेब्यूक्सोस्टैट, पेग्लोटिकेस। ठीक है, इस तरीके की तैयारी करो, इस तरीके की तैयारी करो तुम, ठीक है? एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल्स, वी नो वी कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस डोमेन्स, आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं, पक्की बात है, ठीक है? फार्माकोग्नेसी, सो फार्माकोग्नेसी की जब मैं बात करता हूं, डेफिनेटली यू हैव टैनिन्स, अल्कलॉइड्स, जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सर फार्माकोग्नेसी बहुत बोर होता है, याद नहीं रहती चीजें। सोर्स पढ़ना है डियर, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ना है डियर, एंड यूजेस। अगर मैंने सेना बोला तो सर आपको याद आना चाहिए एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सर आपको याद आना चाहिए सेनोसाइड्स यूज्ड एज परगेटिव्स, आपको याद आना चाहिए सेना इज कमिंग फ्रॉम लीफ, कैसिया अंगस्टिफोलिया। हर एक चीज, जब मैं एक प्लांट, और कुछ हर्ब्स होते हैं जो कॉमन है, जैसे टर्मरिक हो गया, सेना हो गया, डिजिटालिस, एफेड्रा, पिलोकार्पिन, विनका, अर्गोट, ये कॉमनली यूज ड्रग्स है जो आते ही है हर टाइम कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये कैसे पता चलेगा कि सर हर्बल ड्रग्स कौन से इंपॉर्टेंट है? पीवाईक्यूज, पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, पिकअप 10 years पीवाईक्यूज, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हिच आर द प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम फार्माकोग्नेसी। ओके, मूविंग ऑन। सब बायोकेमिस्ट्री से क्या पढ़े? विटामिन्स एंड एंजाइम्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कोई मुझे बता सकता है कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन बोलते हैं? सनशाइन विटामिन, मेरा 6th क्वेश्चन, सनशाइन विटामिन किसको बोलते हैं? एंड जिसने भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दिए उसे मैं पर्सनली आके एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है? व्हेनेवर इफ आई गेट अ चांस टू विजिट आईएसएफ, डेफिनेटली एक गिफ्ट है उसे मेरी तरफ से, और मैं ध्यान रख भी रहा हूं कि कौन दे रहा है। चलिए, वेरी गुड। कॉलिक एल्सिफेरॉल, विटामिन डी। एंजाइम्स, एंजाइम में क्लासिफिकेशन, ऑर्टेल एंजाइम में इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस, यही सब क्वेश्चंस आते हैं, यही सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। देन टेस्ट पे, सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, इन सब की अलग अलग टेस्ट आती है, राइट? इफ आई टेल यू के लिबरमैन बर्कैट, साइल्कोविस्की, ट्राइटर्पिनॉइड और स्टेरॉइड्स की टेस्ट है ये सर, है ना? तो आपको टेस्ट का ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस पता होना चाहिए। मॉलिश टेस्ट पर्पल कलर की रिंग देती है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सी टेस्ट कौन से माइक्रो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल के लिए है और कौन सी कलर है, पर्पल रिंग, है ना? डिटेल्ड पता होनी चाहिए, कलर पे ही पूछते हैं। एमरल्ड ग्रीन कलर थैलेक्विन टेस्ट में है ना? पिक्रिक एसिड येलो कलर, ब्रिक ऑरेंज, ब्रिक रेड कलर, करेक्ट? सो ये सारे कलर्स आप, वेरी गुड। अल्फा, कौन था वो जिसने रीएजेंट का नाम भी बता दिया? वेरी गुड, भरत भूषण कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अल्फा नेफ्थॉल इज अ रीएजेंट नेम, वेरी गुड। सो यही चीजें यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, यू शुड बी अवेयर ऑफ, ओके? सेरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, डेफिनेटली इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे क्वेश्चन आते हैं। एंड क्या कोई मुझे बता सकते हैं सबसे पहला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होता है?
फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए विच इज द इम्यूनोग्लोबुलिन? IgG है, A है, M है, E है, D है? कौन बताएगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो कौन सा होता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। IgM। IgA जो है ना वो सबसे पहला ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि न्यूबॉर्न में आता है, क्योंकि IgA जो है वो कोलेस्ट्रॉम मदर्स मिल्क में सकलिंग एक्शन के थ्रू चाइल्ड में जाता है, नियोनेट्स। और IgG एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो पहला इम्यूनोग्लोबुलिन जो फीटस में जाता है, ठीक है। IgG इज द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन जो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर BPB को क्रॉस करता है। तो वो अगर ये क्वेश्चन है कि फीटस में कौन सा पहले जा रहा है तो IgG। ये क्वेश्चन आया कि न्यूबॉर्न में कौन सा जा रहा है तो IgA। ये क्वेश्चन आया कि फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा प्रोड्यूस करता है, तो जैसे कि आपके स्टूडेंट ने ही बोला है, भरत कुमार ने, IgM। तो इतनी डिटेल और इतने क्रिटिकली क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए ना। दिस इज अनदर रीजन के वाई हमें चीजें नहीं हमारे मार्क्स आते। लोग घाई में होते हैं, हेस्ट में, कि सर क्वेश्चन फटाक से पढ़ के ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़े। भाई 3 घंटे, यू हैव 3 hours एंड जस्ट 125 क्वेश्चंस। आधा घंटा सो जाओगे ना तो भी टाइम ज्यादा ही है। आराम से, योर क्वेश्चन डजंट एंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, योर क्वेश्चन एंड्स आफ्टर रीडिंग द 4 ऑप्शंस। ये बात हमेशा याद रखना। आपका क्वेश्चन तब एंड होगा जब आप चौथे ऑप्शन को पढ़ेंगे। क्या पता ऑप्शन डी में बोथ A एंड B हो और वही राइट आंसर हो, लेकिन आपने A पढ़ के फटाक से मार्क कर दिया। सिली मिस्टेक्स, ये हमें अवॉइड करनी है डियर। एंड एंड मोमेंट पे जो मार्क करके बदल देना है ना, एंड मोमेंट पे आपने लिखा कुछ और था लेकिन लास्ट में आपको लगा कि यार ये सही नहीं है, लेट मी चेंज इट। लास्ट मोमेंट पे कभी चेंज नहीं करना चाहिए, वो गट फीलिंग हमेशा रॉन्ग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो ये आपने अवॉइड करना है डियर, यू हैव टू अवॉइड दिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एब्सोल्युटली एनालिसिस से, क्रोमैटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से अबंडेंट क्वेश्चंस आते हैं। HPLC, GC इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे हो गए, कॉलम्स पे हो गए, ठीक है, इसके डिटेक्टर्स पे हो गए। देन क्रोमैटोग्राफी से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से, UV से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट्स, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन, सबके मोस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन से ही क्वेश्चन पूछते हैं डियर। सबके मोस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन से ही क्वेश्चन पूछते हैं डियर। अब मेरे पास एक छोटी सी जस्ट एक न्यूज है फॉर यू, इफ यू वांट टू विश टू शेयर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ 10-day स्पेशल लेक्चर सीरीज। तो किसी को इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो 600 रुपीज में हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है। डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके। अगर किसी को हमारे जीपैट के, क्योंकि हमें अक्सर होता है ना कि सर हमारे पास नोट्स नहीं है पढ़ने को, सर हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट 10-12 हजार का ज्वाइन कर सके पे करके। सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड नोट्स भी है हमारे पास 1000 रुपीज में। अगर आप दोनों परचेज करना चाहते हो तो इट्स अ स्पेशल ऑफर फॉर ISF स्टूडेंट्स के इंस्टेड ऑफ 1600 at 1400 यू गेट बोथ ऑफ देम। सो स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को नोट्स चाहिए हो, क्योंकि ये ग्लिम्स नोट्स है, आपको 1 पेजर नोट्स मिल जाएंगे इसमें सारे सब्जेक्ट्स के। सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। आप यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम के नंबर्स है ये, आप और मेरे खुद का भी नंबर है इसमें। सो यू कैन रीच आउट टू अस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन। ओके, डेफिनेटली बहुत जरूरी है कि आपको तैयारी तो सब कर लेंगे, लेकिन कैसे करनी है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है डियर। ओके, सो अब ये PPT में ना मैं आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, अदरवाइज विल गो बियॉन्ड द टाइम, क्योंकि टाइम भी इज ऑल्सो टेकिंग। सो वो मुझे, हाउ मच टाइम डू आई हैव मोर डॉक्टर खड़गा? So you can continue. Okay, I can continue. I hope that's not a problem. Yeah, thank you. Okay. Just give me half an hour, I'll probably wind up. So सेमेस्टर वाइज भी मैंने Yes. डिवाइड किया है पूरा, कि सर हमें अब सेमेस्टर वाइज पढ़ना है, कि हमें सेमेस्टर में, तो हर एक सेमेस्टर में 4-5 सब्जेक्ट है आपको डेफिनेटली। फर्स्ट सेमेस्टर में HAP है, ये है, वो है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। सो और उसमें भी 5 यूनिट्स है, फर्दर यूनिट्स होते हैं उसमें, करेक्ट, 5 यूनिट होते हैं, उसको पढ़ना होता है। तो हर यूनिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ मैंने इसमें लिखा है। सो प्लीज, ये थोड़ी सी रॉ PPT है ये वाली, मैं इसको फर्निश करके भेज दूंगा। सो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ो। मैंने सारे टॉपिक वाइज, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट हो गई। चलो, मेरा 7वां क्वेश्चन लिमिट टेस्ट से। कैन यू टेल मी गटजेट अपैरेटस इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ विच सब्सटेंस? गटजेट अपैरेटस, आयन, क्या बात है, मेरे ऑप्शन देने से पहले ही आंसर आ गया, वेरी गुड। आर्सेनिक, आर्सेनिक इज अ वेरी टॉक्सिक हैवी मेटल, पता है? अच्छा, आर्सेनिक से मुझे ये बताओ डियर कि आर्सेनिक का एंटीडोट कौन सा है अगर आर्सेनिक पॉइजनिंग किसी को हो गई?
तो एंटीडोट क्या दोगे? व्हाट इज द एंटीडोट? सर आर्सेनिक का एंटीडोट है डाइमर कैप्रोल। वेरी गुड, क्या बात है खड़गा सर, वी हैव रियली स्मार्ट स्टूडेंट्स। यस सौरभ सर, जैसे ही मैं क्वेश्चन फेंक रहा हूं मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। Yes, highly appreciate the enthusiasm of the students at ISF. Really appreciate it. अच्छा, अब कोई इसका आंसर दे दे। चलो अब तो मैं तुम्हें फंसाऊंगा। डाइमेकेप्रोल का दूसरा नाम क्या है? चलो अब बताओ, अब आंसर दो। डाइमेकेप्रोल का दूसरा नाम क्या है? हाँ, ये मैं पूछने वाला था अगला। क्या बात है भरत भूषण कुमार, वेरी गुड। बाल, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, वो डाइमेकेप्रोल का दूसरा नाम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 सल्फाइड्रिल ग्रुप्स होते हैं, बहुत बढ़िया। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन होने वाला था अगर तुम बाल का आंसर देते, लेकिन वो भी तुमने पहले ही दे दिया। वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। चलिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एब्सोल्युटली ये सेमेस्टर 8 एंड 1 का मिक्सचर है, ठीक है, क्योंकि 1 में भी आप एनालिसिस पढ़ते हो और 8 में भी आप पढ़ते हो। तो टाइट्रेशंस वगैरह यू कवर इन 1 एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रोमैटोग्राफी यू कवर इन 8। सेमेस्टर 2 में आप एचएपी पढ़ते हो। यू नो फार्मेसी सिलेबस एक मैजिक है, बताऊं मैं क्यों? एक सेकंड, मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग 1 मिनट के लिए बंद करके आपसे बात करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप कितने अच्छे प्रोफेशन में घुसे हैं। जो फार्मेसी सिलेबस है ना, वो एक मैजिक है। अगर आप सेम 1 से सेम 8 की जर्नी देखें ना, इतना प्लान्ड सिलेबस है ये। सेम 1 में आप अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। सेम 2 में आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हो, यानी कि वो ऑर्गन में होने वाली डिजीज, कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस, ऑटोनॉमिक, एंडोक्राइन, डर्मल, अलग अलग सिस्टम्स की। सेम 3 में आप, सेम 3, 4, 5 में आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो कि उन ड्रग्स, उन डिजीजेस को ट्रीट कैसे करेंगे। वो पैथोफिजियोलॉजी जो आपने पढ़ी है उसी पे। जैसे अस्थमा, तो हमें पता है अस्थमा में आईजीई, एलर्जिक इम्यूनोग्लोबुलिन जो रिएक्शन करवाती है, तो हम एंटी आईजी एंटीबॉडी देंगे। मास्ट सेल्स हिस्टामाइन और ल्यूकोट्राइन रिलीज करें तो हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स देंगे। ल्यूकोट्राइन आ रहे तो हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट देंगे। ये ल्यूकोट्राइन आके इन्फ्लेमेशन कॉज करे तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, सो दैट इट इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। हर एक चीज एक बहुत ही खूबसूरत फ्लो है। आपको बस उससे इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए पढ़ाई से, फार्मेसी से। एनीथिंग बिकम्स एन इजी टास्क फॉर यू। ठीक है, फिर उसके आगे आप आने वाले फॉर्मुलेशंस पढ़ते हो, उसी में जो आप बना सकते हो। हाउ टू स्केल अप इन सेमेस्टर 7 इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक्स, सुपैक वगैरह। करेक्ट। एंड आप हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, साइमल्टेनियसली सोशल फार्मेसी पढ़ते हो, जिसमें यू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ द हॉस्पिटल, हाउ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी, वो सारी चीजें। सो आप हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च, तीनों एस्पेक्ट्स को आपके 4 साल बी फार्म सिलेबस में कवर करते हो। बट ये चीज हमें रियलाइज नहीं होती जब हम उस प्रोसेस में होते हैं, उस जर्नी में। जब हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, मेरा भी यही था, मुझे तभी रियलाइज नहीं हुआ, तभी बस रट के पढ़ना है, निकालना है सेमेस्टर। बट ये माइंडसेट डियर आपका कभी नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, ये थोड़ा सा ज्ञान हो गया मेरी तरफ से। लेट्स स्टार्ट बैक टू द स्लाइड्स। डोंट वरी, आई होप किसी को नींद नहीं आ रही। अगर आ भी रही है तो नींद उड़ा दो, क्योंकि फ्यूचर बनाना है तो नींद अभी उड़नी चाहिए आप लोगों की। Pharmaceutical organic chemistry, here you have a lot of name reactions that come up. You have Beckmann's rearrangement, Hoffman's rearrangement and all, जो आपको ध्यान रखना है। Diels-Alder reaction, SN1, SN2, favorite question है ये तो ये सारी जो है आपने नोट डाउन कर लेना है। I will send this PPT in few days, so you can take it from the coordinator. ठीक है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से क्या क्या चीजें, राउल्ट्स लॉ, HLB स्केल। अच्छा, HLB स्केल में मेरा 9वां क्वेश्चन, who can tell me that if my HLB value is 8 to 16, तो कौन से एजेंट्स हैं? Who can tell me? Who can tell me? कौन बताएगा? If the HLB value is around 8 to 16. Very good. Solubilizing, कब से हो गए solubilizing agents in 8 to 16? 16 to 20 में आते हैं वो तो। 8 to 16 में डियर आते हैं आपके O by wetting agents. No. चलो, ये पहला क्वेश्चन है जिसपे हमारे ISF के स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा गलत आंसर दिया है। नहीं तो अब तक मेरे 8 के 8 क्वेश्चन में आपने 7 करोड़ रुपए ले गए थे, और अभी तक किसी ने राइट अभी दिया। आशीष एंड भूषण, राइट, दैट्स अ राइट आंसर। O by W emulsifying agents। ठीक है, अब ये क्यों भूल गए सर? ये हमने सेमेस्टर 2-3 में पढ़ा था। यही गलती है, आपने पढ़ना डियर अर्ली है। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोबियोलॉजी, एब्सोल्युटली माइक्रोबियोलॉजी में आपकी बायोकेमिकल टेस्ट बहुत जरूरी है कि आपको बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में पता हो। ठीक है,
इमविक टेस्ट वगैरह, इंडोल मिथाइल रेड, स्टेनिंग, जितना हो सके स्टेनिंग में ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में पढ़ो। यू नो इन माय मास्टर्स आल्सो हम स्टेनिंग करते हैं, आपको पता है, बट ग्राम की नहीं, हम HNE PSR अलग स्टेनिंग करते हैं, राइट, जो कि आपका कोलाजेन वगैरह डिटेक्ट करती है, न्यूक्लियर क्लम्पिंग एंड ऑल। सो स्टेनिंग एक ऐसी चीज है जो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, दैट इज द मेजर पर्पस ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स। सो ये आपको पढ़ लेना है, बहुत जरूरी है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर, क्योंकि आप कभी भी कोई फॉर्मुलेशन बनाते हो उसके नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस होते हैं, राइट फ्रॉम साइज रिडक्शन टू द साइज सेपरेशन। सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, वो चीज आपको बहुत ही ज्यादा पता होनी चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट बेसिक एप्लीकेशंस एंड प्रिंसिपल, जैसे अगर मैं कहूं स्टीम डिस्टिलेशन, तो तुम्हें पता होना चाहिए स्टीम डिस्टिलेशन इज फॉर वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। Steam distillation is for volatile substances. And also a big congratulations to मैंने अभी सिद्धार्थ सर का मैसेज पढ़ा ISFCP पे, MSME Business Incubation Center has been approved, right? Hackathon 4.0. So congratulations to all of you for that. Very, you should congratulate your entire team, all the stakeholders, everybody for such a great micro, small, mini enterprises being approved at ISF. Very happy for the news. चलिए आगे बढ़े। यही मैं कहता हूँ ना, अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। यू आर एट अ कॉलेज, लेट मी टेल यू, मैं ऐसी बी फार्म कॉलेज से आता हूँ जहाँ पे कुछ नहीं था, क्योंकि इट वॉज अ न्यू कॉलेज। आपके पास, आप ISF में आपके पास बहुत फैसिलिटीज है, मैंने आके लैब्स भी देखे आपके कोलॉजी के, काफी बढ़िया है, एवरीथिंग यू हैव, मॉरिस वाटर मेज है, हर एक चीज है वहां पे, राइट, ज़ेब्रा फिश ये वो। इवन इफ यू आर इन अ बैचलर्स, पता है, अगर आपको एक मोटिवेशन चाहिए कि मास्टर्स क्यों करूं, एक बार लैब जाके विजिट करो यार, ऑर्गन बात देखो, थोड़ा चीजें देखो, टिश्यू रिस्पॉन्सेस कैसे आ रहे हैं, जस्ट लुक एट इट, आपको मजा आएगा, वो क्यूरियोसिटी आएगी। बच्चे बहुत बार यही कंप्लेन करते हैं कि सर हमें यही नहीं पता आगे करना क्या है, वी डोंट नो, वी वांट टू डू मास्टर्स, वी वांट टू डू MBA, वी वांट टू डू फार्माकोलॉजी, ये वो। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव दैट प्रैक्टिस, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव दैट प्रैक्टिस, ओके, कि तुम थोड़ा सा लैब्स जाके देखो, तो तुम्हें एक इंटरेस्ट आएगा कि तुम्हें फॉर्मुलेशन में इंटरेस्ट है या फिर तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेटली आपके सारे आइसोमर्स वगैरह आ जाएंगे जो आपने पढ़ने हैं अच्छे से, डेफिनेटली। फार्माकोग्नोसी में सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कर लेने हैं, कोलॉजी में रिसेप्टर्स, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, एंटीडोट्स, एवरीथिंग, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट SAR, सर हम SAR पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता, कैसे याद रखोगे कोई भी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को माय फ्रेंड? कोई भी एक ही साइड पढ़ो, या तो अच्छी या तो बुरी, ठीक है। मतलब कि अगर ये ग्रुप डालने से एक्टिविटी बढ़ रही है, तो कोई भी स्ट्रक्चर का SAR पढ़ रहे हो तो सर याद रखो, सपोज बेंजोडाइजेपिन, तो क्लोरीन ऐड करने से 7th पोजीशन पे एक्टिविटी बढ़ रही है, तो मैं सिर्फ बेंजोडाइजेपिन के SAR में वही पढ़ूंगा कि कौन से ग्रुप डालने से एक्टिविटी बढ़ रही है, अपने आप जो भी होगा बाकी वो उससे नेगेटिव एक्टिविटी होगी। तो आपको दोनों चीजें याद रखने जाओगे तो याद ही नहीं रहेगी, कोई भी एक पार्ट याद रखो, या तो कौन से ग्रुप डालने से एक्टिविटी बढ़ेगी, कौन से ग्रुप डालने से एक्टिविटी कम होगी। मेडिसिनल केमिस्ट्री विल बी अ केक वॉक फॉर यू। वेरी गुड, यस, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, लाइक नाइट्रो ग्रुप्स एंड ऑल, बहुत बढ़िया। किसने लिखा है वो चैट बॉक्स में? वेरी गुड, हुएवर रोट दैट। ड्रेव्स टेस्ट बिल्कुल वेटेबिलिटी देखता है, वेरी गुड आशीष कालश, वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया, काफी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। आई डेंट एक्सपेक्ट सच अ काइंड ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, मतलब टीचर्स काफी मेहनत तो करते हैं वहां पे, बढ़िया। बिकॉज आई गो टू लॉट ऑफ कॉलेजेस फॉर दिस सेमी वेबिनार्स, लेकिन इतनी इंटरैक्टिव ऑडियंस मुझे हार्डली 1 या 2 कॉलेज में मिली है। रियली हैप्पी टू हैव सच अ ग्रेट ऑडियंस आउट देयर। इससे मेरे को भी एनर्जी आ रही है कि मैं और जोश के साथ पढ़ाऊं। अब मेरा 10वां और आखिरी क्वेश्चन होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस से। मैंने कहा था 10 क्वेश्चन पूछूंगा। द लास्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी दैट which schedule is for list of disinfectant fluids? कौन से schedule of drug and cosmetic act में list of disinfectant fluids आते हैं, बताओगे? Who can tell me? बढ़िया, 0? ओ बहुत बढ़िया, लिस्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड शेड्यूल O में आते हैं ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको याद, पूरे की पूरी स्टेटमेंट याद करने की जरूरत ही नहीं है शेड्यूल में। A में एप्लीकेशन, B में फीस, C में पैरेंटल बायोलॉजिक्स, C1 में नॉन पैरेंटल बायोलॉजिक्स, D में एग्जेम्प्टेड मेडिकेशंस फ्रॉम इंपोर्ट, E में पॉइजन्स की लिस्ट, F1 F2 में आपके
सारे के सारे सर्जिकल ड्रेसिंग्स, अम्बिलिकल टेप्स। जी में लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कोई भी क्वेश्चन कभी भी पढ़ो ना, उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड आइडेंटिफाई करो। और कुछ कुछ क्वेश्चंस, मेनी अ टाइम्स देयर हैव बीन क्वेश्चंस जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, ऐसे कीवर्ड्स दिए होते। तो हम लोग घाई घाई में पढ़ लेते विच ऑफ द फॉलोइंग इज। उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है या कौन सा है इनमें से एक्सेप्ट। तो ये जो कीवर्ड्स है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस। एंड द लास्ट टिप जो मैं आपको आज देना चाहूंगा कि सर हम सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़े, लिंक करो डियर। मैंने बस एक ड्रग का नाम लिया, डिजिटालिस। ओके, अब इससे आपको फार्माकोलॉजी क्या याद आई? सर इट्स अ पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एजेंट। काफी बार डिजिट इट्स अ फार्माकोलॉजी मॉडल। जब मैं मास्टर्स कर रहा था हमारे नाइपर से, सो फर्स्ट चीज जो मैं पढ़ाई जाती है वो है एनिमल मॉडल्स। सो अरिथमिया, अरिथमिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल होता है डिजिटालिस, डिजिटालिस इंड्यूस्ड अरिथमिया। सो इसमें पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एजेंट है जो कि एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इनिबिटर है। डिजिटालिस का सर ये तो कोलोजी आ गया। सर कोग्नोसी में हमें याद आना चाहिए डिजिटालिस परप्यूरिया, डिजिटालिस लनाटा विच इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। सर बायोकेमिस्ट्री से हमें टेस्ट याद आनी चाहिए, केलर किलियानी टेस्ट। सर क्लिनिकल फार्मेसी से हमें उसका एंटीडोट याद आना चाहिए, यानी डीजी बाइंड एंड डीजी फैब। हुआ कि नहीं, एक तीर से मल्टीपल निशान, दिस इज अ ब्रह्मास्त्र। कभी भी सब्जेक्ट्स को लिंक करके पढ़ो। मैंने एक ही इससे आपको कोलोजी, सुटिक्स, सुटिक्स तो नहीं, कोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, कॉग्नेसी और क्लिनिकल फार्मेसी बता दिया। यस और नो। अब इसका स्ट्रक्चर कार्डिनोलॉइड रिंग होती है इसमें, लो भाई केमिस्ट्री भी बता दिया। अब इसका मैं एनालिसिस भी बता सकता हूँ कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप नंबर ऑफ एच एंड कार्बन आइडेंटिफाई कर सकते हो, C23 मिलेगा। तो एनालिसिस से मैंने आपको इसका वुडवर्ड फिशर से भी आप कॉन्जुगेशन देख सकते हो, हेट्रानुलाडाइन से। करेक्ट। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड। आपको बस उस लिंक को, छुपी हुई लिंक को एक्सपोज करना है माय डियर। ठीक है, बीसीएस क्लासिफिकेशन है ना। आप कोई भी फार्मास्यूटिक्स में आगे, सपोज आप मास्टर्स करोगे, इफ यू वांट टू परस्यू मास्टर्स इन फार्मास्यूटिक्स, सबसे पहली चीज है ड्रग ढूंढना, ड्रग की प्रीफॉर्म स्टडीज, ड्रग की सॉल्युबिलिटी स्टडीज एंड ड्रग कौन से बीसीएस क्लास का है। अगर वो ड्रग सॉल्युबल ही नहीं है तो सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स देखनी पड़ेगी। अगर वो ड्रग परमिएबल ही नहीं है तो परमिएशन एनहांसर्स देखने पड़ेंगे। सो बीसीएस क्लास, प्रीफॉर्म स्टडीज, सॉल्युबिलिटी स्टडीज, दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी एसेंशियल एंड वाइटल स्टडीज दैट यू नीड टू डू। ठीक है, यस और नो, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, शैल वी मूव अहेड। फार्माकोग्नेसी, मैंने इधर कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स दिए जो पिछले साल से बहुत पूछे गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरा स्क्रीन मूव हो रहा है क्या? मेरा स्क्रीन मूव हो रहा है? Am I Yes, sir. audible and is my screen visible, Dr. Khadga? Just winding up in a minute. Hello? Net पे। Hello, you are audible, sir. You can continue. Oh, okay, I'm audible. Okay, I think so। एक लैग था मेरे एंड से। Hello. Yeah, am I audible now? Password क्या है? I don't know, इसमें कोई तो problem। Continue। Hello? Hello. Yeah, am I audible now?
Okay. Now you are audible. Okay. I'm so sorry. There was actually network lag from my end. Just winding up in a minute. Okay. Just give me a few minutes. सो इसी तरीके से आपको हर सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी से कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, राइट? हर्बल ड्रग से आईपीआर, पेटेंट पे क्वेश्चन आता है। अब चलो मैं एक एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन, ठीक है? पेटेंट में क्या कोई मुझे बता सकता है, अगर ऑर्फन ड्रग्स है जो कि रेयर डिजीजेस में देते हैं, उसकी एक्सक्लूसिविटी कितने साल रहती है? एंड आईएसएफ से तो बहुत पेटेंट्स फाइल होते हैं, ड्रग पेटेंट, डिजाइन पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट, मैंने देखे देयर आर लॉट ऑफ पेटेंट्स बीइंग फाइल्ड। सो ये चीज तो आई कैन एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स को वहां की पता होगी। ऑर्फन ड्रग्स या रेयर ड्रग्स की पेटेंट का टर्म होता है 20 साल, वो तो सिर्फ पेटेंट का। अगर मैं ऑर्फन ड्रग्स या एक्सक्लूसिविटी 7 years, 7 years, ठीक है, ऑर्फन ड्रग्स के लिए जो रेयर डिजीज में यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने अच्छे से कर लेनी है। बायोफार्मास्यूटिक्स से आपने लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, है ना? लोडिंग डोज आप अगर ये भी देते हो, अगर आप फार्माकोलॉजी में सपोज आगे प्रोजेक्ट देते हो, तो आप एक रेजीम, एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाते हो कि इतने इतने टाइम में मैं ये ड्रग एडमिनिस्टर करूंगा। तो वो किस बेसिस पे होता है? हाफ लाइफ के और ड्रग की लोडिंग एंड मेंटेनेंस कैपेसिटी पे। सपोज एक ड्रग को मैंने लोड किया इनिशियल हाई डोज, बट देन वो मेंटेन ही नहीं हो पाया, उसकी जो थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं हो पाई, क्या फायदा फिर ये ड्रग देकर? सो आपको वो लोड हुआ, उसे मेंटेन करना है, दिन है ना? एजिथ्रोमाइसिन दिन में 2 बार खाते हो, 3 बार खाते हो, क्यों खाते हो 2-3 बार? सर मेंटेनेंस जरूरी है, उसका प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी मेंटेन, करेक्ट? तो ये ग्राफ को, ताकि ये नीचे ना जाए, ये मेंटेन रहे, इसी वजह से हम मेंटेनेंस डोज देते हैं, इनिशियल हाई डोज, लोडिंग डोज एंड देन मेंटेनेंस डोज, करेक्ट? सो आइदर ये हॉस्पिटल में इन्फ्यूजन वगैरह लगा के दे सकते हैं, कैसे भी ऑरली दे सकते हैं, 500 mg फॉलोड बाय 250 mg, इट्स अप टू द रेजिम, बट आपको ये चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? एनडीए फाइलिंग, एएनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है? अब इस पीपीटी में मैंने एक मिस्टेक करी है, क्या मिस्टेक है वो? इस पीपीटी, सॉरी, इस स्लाइड में एक मिस्टेक है, कोई मुझे बता सकता है क्या मिस्टेक है वो? एनीबॉडी? वेरी गुड। एनडीए कभी भी स्मॉल में नहीं लिख सकते डियर, न्यू ड्रग एप्लीकेशन एक प्रोसेस का नाम है, आप कभी भी उसे स्मॉल में नहीं लिख सकते, ओके? कैपिटलाइज होता है हमेशा एनडीए, एनडीए। चलिए बहुत बढ़िया। जेनेरिक किस में आते हैं? जेनेरिक्स आते हैं एएनडीए। आप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर? यस। एंड न्यू ड्रग्स जो है वो एनडीए में जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, आई होप आपको पता है कि जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स काफी नैरो होता है उनमें हम टीडीएम करते हैं। थियोफाइलिन, लीथियम, कार्बामेजेपिन, मॉर्फिन, एम्फेटामाइन, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इतना नैरो है थेराप्यूटिक इंडेक्स कि इसके लिए यू नीड अ टीडीएम, therapeutic drug monitoring. You know, those who are pursuing pharmacy practice or hospital and clinical pharmacy ahead, you must be aware about the TDM and the process of how do you carry out a TDM. थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग आउट पेशेंट के लिए कैसे करते हैं, इन पेशेंट के लिए कैसे करते हैं, क्या वो पॉसिबल है? ये सारी चीजें आप यू कैन लुक इनटू इट डीपर, राइट? सो मेक इट योर गोल कि आपको कुछ कर दिखाना है। 3D को फॉलो करो लाइफ में, डिजायर, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। पाने की एक चाह, उस पाने की चाह में एक डिसिप्लिन, एक ऐसा शिस्तता और डेडिकेशन कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मुझे तोड़फोड़ मचानी है, ठीक है? नथिंग कैन स्टॉप यू, यू आर अनस्टॉपेबल। अपने आप में बिलीव करो। सर मेरे मॉक टेस्ट के मार्क कम आ रहे हैं, मैं लेट शुरू कर रहा हूं, सर मुझसे होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा डियर? आप फार्मेसी में आ गए, आपने 11-12 की पेपर बोर्ड एग्जाम दे दी, आपने नीट भी दी ही होगी या दूसरी कौन सी सीईटी भी दी ही होगी, हो गई ना क्रैक? क्यों नहीं होगी ये क्रैक? सेमेस्टर निकाल लेते हो ना, पास तो कर लेते हो ना? बिलीव, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन एब्सोल्युटली, अगर ग्रुप आपका अच्छा है तो ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए वैलिड है, नहीं तो फ्लॉक्स ऑफ फेदर फ्लाई टुगेदर। पता चला एक बदमाश लड़का सारे बदमाशों को डुबा दे गया, ठीक है? तो ये भी नहीं, ग्रुप बहुत जरूरी है कि अच्छा हो, ठीक है?
चलिए, सो हम मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है, पयाम वोरा, मेरे ही नाम से, PAYAAM। आप वो फॉलो कर सकते हो। मैं इस पे डेली जो है यूट्यूब के अपडेट्स डालता हूँ। एंड वी हैव 6000 सब्सक्राइबर्स अराउंड ऑन माई चैनल, जहाँ पे मैं GPAT की तैयारी करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप आ सकते हैं हमारे स्लाइड शेयर पे। अगर मेरी कोई भी GPAT की पढ़ाई की PPT आपको चाहिए तो आप स्लाइड शेयर पे मेरा नाम टाइप कीजिए, पयाम वोरा। आपको ये सारी PPT फ्री में डाउनलोड हो जाएगी, फ्री में डाउनलोड होगी ये सारी। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये मेरा पेज, मेरा हैंडल है, ऑफिशियल हैंडल है। ठीक है, ये मैं जहाँ पे मैं अपडेट्स पोस्ट करता हूँ रिगार्डिंग फार्मेसी के, बहुत अच्छे अच्छे। So you can follow us on these. Besides this, you can reach out to me on these numbers and my team will get back to you. Thank you so much everybody कि आपने इतने patiently मुझसे सुना, and thank you so much Dr. Khadga, Dr. Siddharth, Dr. Saurabh, Dr. GD Gupta for inviting me for such a great seminar. So thank you so much. What an energetic lecture you have delivered. Student, if you have any doubt, you can directly ask. You can unmute yourself and you can ask to any questions to the today's expert. That is best pharmacy tips and tricks. This is the YouTube channel name. You Yeah, can subscribe and you can also watch videos. definitely. And मैं दिखाई देता हूँ सर उनको एक मिनट में। एंड जिनको भी बिल्कुल डाउट्स है, बिल्कुल सिली से सिली डाउट्स है ना, वो भी पूछो, क्योंकि हाँ डाउट छोटा बड़ा नहीं। हाँ जी, डेफिनेटली स्टूडेंट्स डेफिनेटली किसी को आपको कुछ भी सिली से डाउट सिली है आप डाउट्स लोग भी है पूछ ना। लो इसमें ना हाँ जी सर, हाँ मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक सो ठीक ठीक ये है हमारे प्लेलिस्ट। ये जो प्लेलिस्ट है ना, ऐसे नहीं मेरे व्यूज बढ़ाने, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन करे तो देखना एक दो वीडियो, लेकिन ये जो प्लेलिस्ट है ना, क्विक फार्मा नोट्स, इसमें जितनी भी मैंने चीजें पढ़ाई है ना, उसमें से 50 से 60 slide is not स्लाइड इज नॉट your विजिबल। screen is not no ओके no no ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट। screen is not visible. ओके ओके, नाउ इज इट विजिबल सर? Yes, now it या is ये visible. जो वीडियोस है ना, इसमें जितने भी मैंने चीजें बताई, इससे 40 से 50 क्वेश्चन GPAT में एज इट इज आई हैड हियर। तो एटलीस्ट ये सीरीज को, और इसमें सब्जेक्ट वाइज है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, तो आप डेफिनेटली इसको जरूर एक बार देखना। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यॉल। और इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने जो जो चीजें पढ़ाई है ना, वो आपने गौर से पढ़ लेनी है। इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। ठीक है, नॉट बिकॉज मुझे व्यूज बढ़ाने, वो मैटर ही नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत काम आएगी, जेन्युइनली कह रहा हूँ। एक बार देखना, खुद को डिफरेंस समझ आएगा। ये प्लेलिस्ट है GPAT की, और भी है Definitely. GPAT की, यू कैन वॉच आउट दैट। इसमें संजीवन गुप्ता, आपके जो सीनियर है, उनकी भी पॉडकास्ट आप वो भी देख सकते हैं। वो भी हम मुझसे जुड़ा था, वो भी मुझसे जुड़ा था, संजीवन भी। ठीक है, ये रहा। दिख रहा है खड्गा सर? Yes, yes, या it is visible ये now. आपके ही सीनियर संजीवन गुप्ता की भी है, आप उनकी भी सुन सकते हैं। तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर श्योर। किसी को कोई भी डाउट है, बिंदास पूछ सकते हैं। एंड जो मैंने नोट्स की बात करी, किसी ने इसमें डाला है मैसेज, तो जो नोट्स है वो सारे के सारे विथ रिकॉर्डिंग्स 999 रुपीज, 1000 रुपए में। इतना तो हम पिज्जा में उड़ा देते हैं। 999 में अवेलेबल है, और ये वो नोट्स के कुछ PDFs है जो आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको GPAT लेक्चर सीरीज जो 10 डेज की स्पेशल है, वो भी चाहिए साथ में, तो इट्स अ कॉम्बो ऑफर ओनली फॉर ISF स्टूडेंट्स, बिकॉज डॉक्टर खड़गा ने बुलाया, तो डेफिनेटली उनके स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। सो 1400 रुपीज फॉर देम, बिल्कुल एब्सोल्युटली। एंड या दैट्स इट। और किसी को कोई so डाउट है तो student do बताइए। you have any doubt? No doubt. किसी के मन में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो डायरेक्टली अब अगर डाउट नहीं है तो भरत दो ही चीज हो आशीष सकती है खड़गा सर, या तो इन्हें कुछ नहीं समझा है, या तो इन्हें सब समझ गया है। नहीं नहीं दे अंडरस्टैंड आई मुझे होप इतना के, भरोसा है कि कुछ ना कुछ समझ गए आज के लेक्चर में एब्सोल्युटली। तो भरत आशीष आप लोग को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो ओके, so, सब समझ आ रहा So है। thank you so much for your this wonderful lecture. This is energetic, engaging, and valuable lecture on GPAT preparation. Your session was very impressive and highly motivated to our students. So you have discussed about the overview of GPAT, list of various pharmacy exam, discuss about the pattern of questions for the individual subject with examples. So definitely our students understanding about this, and there is a 3D concept. Also they got about the desire, dedication, discipline, then enjoy. So
for the more information, students, you can subscribe his YouTube channel. Otherwise, you can directly contact to the our today's expert, the Payam sir. So definitely in the future also we'll meet and connected with you. Absolutely. So it's nice to meet you. Thank you so much Thank you for so much. Thank joining you so and much, all the accepting students, for our joining. invitation. Wish you good luck. So thank you so much.